સર તમારું મ્યુટ છે તમારું. ઓકે. Good morning, everyone. My name is Milan R. Patel, working as an assistant professor in Mechanical Engineering Department, SNP ITRC, Umrak, Bardoli. So today on webinar series organized by Mechanical Engineering Department, we have the topic of manufacturing processes and Aspirate software. To conduct this webinar, we have expert speaker, Mr. Mahek Mistry from Sopan Group, Surat. Sir is in CAD/CAM education from last 10 years, as he always wanted to do something for student and the education system. He has started Sopan Institute of Engineering and Design in 2010. After completed his BTech Mechanical from Nirma University in the same year. Currently, he is working as a director of Sopan Group of Company. So now I hand over online platform to Mahek Mistry sir. Sir, you can carry now. Thank you, Milan sir, to introduce me. Okay, and hello everyone. Welcome to today's session. Today's our webinar topic is manufacturing process and the Aspirate CAM software. Sir, my screen is visible. Yes, sir. Yes. Yes, sir, Okay, visible. thank you. Yeah, thank you. Okay, so today's our webinar topic is manufacturing process and Aspirate CAM software. So before I will show you the CAM software demonstration, how Aspirate CAM software works, we should have to clear the basics of manufacturing process. Okay, what is manufacturing? Okay, as we know, in there are so many definitions are available in the Googles as well as in books. Okay, here I have taken three definition from the Google. Okay, I will read first one. The manufacturing is more than just putting part together. It's coming up with ideas, testing principles, and perfecting the engineering as well as the final assemble. Okay, this is the correct definition. Okay, second definition is a manufacturing process are the step through which raw materials are transformed into final product. Okay, ये भी जो definitions है, it is correct. Third definition है the manufacturing process begin with the product design and the material specification from which the product is made. ओके ये तीनों जो डेफिनेशंस मैंने गूगल से लिया हुआ है. ओके, ऑल द डेफिनेशंस आर करेक्ट. ओके, लेकिन यहाँ पे एक चीज हाईलाइट मैंने किया है, अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ कस्टमर. नाउ वी कैन रीड थर्ड डेफिनेशन. Okay, the manufacturing process begin with the product design and the material specification from which the product is made according to need of customer. Okay, this definition will more clear about the manufacturing process, because according to need of customer, that is very important points for the this definition, manufacturing process definition described. Okay, how many manufacturing process are there? Okay, the basically all have the correct answer, but so many different answers are there. Here, total three manufacturing process are there. First one is zero process, means casting and forming. Why it is called zero process? Because in this process, no material will remove or no material will add on the workpiece. So it is called zero process. Second process is subtractive process, like machining. In this process, material will be removed from the workpiece. Okay, and we will see more about this subtractive process, means machining, in today's session. And third process is additive process, like additive manufacturing. In this process, metal will be added to the workpiece.
That's why it is called additive process or additive manufacturing process. Okay, so today we will see more about the subtractive process, machining. So what is machining? Okay, we can define this in a simple way. Remove material from the workpiece, that is machining. Okay, it covers several process which we usually divide into following category. One is traditional cutting, non-traditional machining process, and abrasive process. In traditional cutting, generally involving single point or multi-point cutting tools such as milling and turning. Okay, abrasive process such as grinding. Non-traditional machining process utilizing electrical, chemical, and optimal source of energy. Okay, in today's session, we will see more about the turning and milling, theoretical as well as in the software. As we know, what is turning? What is turning? I will explain with the video. You can see In straight here turning, the tool is fed parallel. in turning, workpiece will be rotating always, and tool is feeding parallel to the axis of the workpiece. You can see To the the axis of the video. work to reduce its diameter so that the final diameter is the same at each end. Removing a significant amount of material in one pass is called rough turning. The final lighter cut that creates a smooth surface finish is called finish turning. Taper turning produces a taper along the axis of the workpiece. Tapers are produced by offsetting the tailstock from center line or by using a taper attachment. Short, steep tapers can be turned using a compound rest. Contour turning or profiling was formerly performed by having the single point cutting tool trace a template of the desired profile shape. This has largely been replaced by CNC turning, in which the desired contour is simply programmed into the machine, which directs a cutting tool to cut the contour. Forming is another alternative for generating complicated shapes. The tool having the desired form or geometry is advanced perpendicular to the axis of rotation, reproducing the tool shape in the workpiece. Forming is commonly performed on automatic screw machines. Chamfering eliminates sharp corners from a workpiece and is a good safety measure. Typically, chamfering breaks corners at a 45-degree angle. Grooving creates a groove or recess using a tool that is usually the size and shape of the required groove. Some grooving tools can also widen a groove by traversing side to side after plunging into the workpiece. This was the turning. Milling. Okay, milling is the process of cutting away material by feeding a workpiece past a rotating multiple cut cutter. Also, we have one video to understand proper. Milling edges, shoulders, and grooves may use a combination of end, peripheral, and/or face milling operations. Creating edges or edging may involve the milling of one or two surfaces. Shoulders typically have two surfaces, and grooves usually have three surfaces. Grooves may be closed at one end or open at both ends, and they may be cut on internal and external flat surfaces as well as on round surfaces. Peripheral milling cutters have cutting edges on their periphery, which are parallel with the axis of rotation. Peripheral milling is useful for creating long open slots and forms. End milling cutters are round shank tools with cutting edges on their periphery and end. The axis of rotation is perpendicular to the surface produced by the end of the tool. Cutter size is defined by its diameter and cutting depth. Since end mills cut more with the teeth on their periphery than with the teeth at their end, they are susceptible to lateral forces,
This makes them subject to deflection, which reduces the accuracy of the milling operation. Short, shallow slots are often created with end mills. Deep, narrow slots may be milled with an end mill, a thin slitting cutter, or a grooving cutter. Grooving or slotting cutters are generally more efficient than end mills for cutting long and deep slots because of their larger diameter and greater number of teeth. Okay, so I will show you these all the operations in the milling as well as in turning. I will show you in the SPID CAM software. Okay, before मशीनिंग व्हाट डू यू नीड. ओके, कौन किस किस की हमें ज़रूरत होती है फॉर द मशीनिंग. मशीनिंग के लिए हमें रिक्वायरमेंट रहती है. फर्स्ट थिंग इज ड्राइंग ऑफ द पार्ट. ओके, वी रिक्वायर ड्राइंग. सेकंड इज मेक द 3D मॉडल इन एनी डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, वेदर इट इज इन ऑटोडेस्क प्रोडक्ट, सॉलिडवर्क्स प्रोडक्ट्स, ओके, और कोई भी प्रोडक्ट में हमने कैड मॉडल बना सकते हैं, 3D मॉडल. थर्ड वन इज सिलेक्ट अप्रोप्रिएट मशीन टूल. ओके, ये जो वर्ड है सिलेक्ट अप्रोप्रिएट मशीन टूल मीन्स वी नो द लेथ मशीन, मिलिंग मशीन, उसको हम बोलते हैं मशीन टूल. ओके, यानी जो हमारा पार्ट है वेदर इट विल बी फॉर द मिलिंग और टर्निंग, अकॉर्डिंगली वी हैव टू सिलेक्ट अप्रोप्रिएट मशीन टूल. मशीन सिलेक्ट कर लिया, देन वी हैव टू सिलेक्ट कटिंग टूल अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशंस. ओके, कटिंग टूल हमने सिलेक्ट कर लिया, देन वी हैव टू गिव इनपुट फॉर द कटिंग डेटा पैरामीटर्स. और है रो मटेरियल्स एंड एनसी कोड. जो इतना जो चीज़ है, ओके, वी हैव टू नो फॉर द मशीनिंग. ओके, ड्राइंग अप द पार्ट, मेक द 3D मॉडल, select the appropriate machine tool, cutting tools, cutting data parameters. ओके, ये सभी चीज़ हम सॉफ्टवेयर में भी देखेंगे एस्पिड कैम सॉफ्टवेयर में. ओके, तो जैसे कि ये फॉर एग्जांपल यू कैन सी द ड्राइंग ऑफ द पार्ट. ओके, उसका 3D मॉडल है. देन है वी हैव टू सिलेक्ट अप्रोप्रिएट मशीन टूल. ओके, मशीन टूल का ब्रांड है जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, ओके, इन द इंडियन मेक मशीन इज इट ज्योति, इस माइक्रोमेटिक. ओके, और जो भी ब्रांडेड और भी मशीन्स है लाइक DMG मोरी. ओके, देन स्लाइडिंग हेड के लिए है सिटीजन, सुगामी, हानवा एंड ऑल. ओके, वो सब क्या हो गया, मशीन टूल हो गया. ठीक है, तो वी हैव टू सिलेक्ट अप्रोप्रिएट मशीन टूल अकॉर्डिंग टू दैट पार्ट. देन कटिंग टूल सिलेक्ट करना है हमें. तो हियर आई शो यू सम ऑफ कंपनी ऑफ कटिंग टूल. ओके, ये सभी कंपनी है वो कटिंग टूल अवेलेबल रहते हैं मार्केट में. जैसे कि विडिया हो गया, सैनविक है, कैन्ना मेटल, मित्सुबिशी, सीमेंस, जोलर. ओके, तो ये सब है कंपनीज फॉर कटिंग टूल्स. जो भी कटिंग टूल्स रहते हैं उनके मटेरियल्स कौन कौन से रहते हैं जनरली. तो कार्बन टूल स्टील हो गया, HSS हो गया, सीमेंटेड कार्बाइड हो गया, सिरेमिक टूल्स है. ओके, तो अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशंस ऑन रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन के हिसाब से हमें उसका मटेरियल सिलेक्ट करना है. कटर का टाइप कौन कौन सा रहता है वो भी रहता है, जो ऑपरेशंस के ऊपर डिपेंड करता है हमें कटर टाइप कैसा रखना है एंड मिल में. ओके, उसमें एंड मिल है, बॉल मिल है, बलनोज मिल है. ओके, वैसे सब कटर के टाइप्स है. देन है कटिंग टूल हमने वन सिलेक्ट कर लिया. ओके, तो जो भी कटिंग टूल हमने सिलेक्ट किया उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड डेटा लगता है. जैसे कि उसका कटिंग टूल है, ओके, फॉर एन एग्जांपल सैंडविच से कटिंग टूल है तो उसका एक स्टैंडर्ड रहता है, मैक्सिमम स्पीड एंड मिनिमम स्पीड रहती है. ओके, तो वो सब कुछ हमें कटिंग डेटा सॉफ्टवेयर में भी देना होता है और विदाउट सॉफ्टवेयर मैनुअली प्रोग्राम कर रहे हैं तब भी हमें देना होता है. ठीक है, तो वो कौन कौन सा कटिंग डेटा देना होता है. ओके, रिक्वायरमेंट होती है तो कटिंग डेटा है तो मेन हमें इतना चीज़ इनपुट की रिक्वायरमेंट रहती है: स्पीड, फीड, डेप्थ ऑफ कट, स्टेप ओवर एंड एंट्री एग्जिट एक्सटेंशन. ओके, टोटल 5 जो चीज़ है वो कटिंग डेटा हमें उसमें रिक्वायरमेंट होती है कोई भी मशीन हो. ठीक है, तो आई विल शो यू दिस इन एस्पिड कैम सॉफ्टवेयर ऑल्सो. देन रो मटेरियल देखना है हमें. देन एनसी कोड, जो हमने CNC मशीन है
ओके, तो हम एनसी कोड, सीएनसी को एनसी कोड लैंग्वेज पता चलती है, तो वी हैव टू क्रिएट एनसी कोड. ओके, इट इज़ इजी. ओके, इट इज़ पॉसिबल. मैं ऐसा नहीं बता सकता कि इजी है या डिफ़िकल्ट भी नहीं है. ओके, बट इट इज़ पॉसिबल, बट इट कैन बी इजी विद द यूज़ ऑफ कैम सॉफ्टवेयर. ओके, इसको इजी हम बना सकते हैं विद द यूज़ ऑफ कैम सॉफ्टवेयर. ओके, तो फर्स्ट I will some introduction overview about the Aspid Cam software. Okay, Aspid Cam software is parent company name is DP Technology Corp. Okay, it is US based software, a US based company. Okay, and it was established in year of 1982. यानी मैं बताना वो चाहूँगा that this is not new software. एस्पिड एक नया सॉफ्टवेयर नहीं है. इट इज अराउंड 38 year old सॉफ्टवेयर इन द वर्ल्ड वाइड. ओके, एंड दे हैव 320 एम्प्लॉय डायरेक्ट एम्प्लॉय. ओके, 240 plus reseller. Okay, we are also reseller. Okay, in more than 30 countries. Okay, so and second thing is that okay, this software has an open and integrated solutions for. And if we will design a part in whether it is in Proe, SolidWorks, Autodesk, Siemens or CATIA, कोई भी CAD model का part we can open directly in Aspid CAM software. Okay, the Aspid CAM software is a slogan is the only CAM system you will ever need. Okay, how? Because Aspid is a powerful full spectrum CAM system फॉर सीएनसी प्रोग्रामिंग. ओके, यानी सीएनसी जो हमें सीएनसी मशीन के लिए जो एनसी कोड चाहिए. ओके, इट कैन बी जनरेट. वी कैन ऑप्टिमाइजेशन आवर प्रोग्राम विथ ऑप्टिमल एनसी कोड and simulation. We can see the realistic simulation in the software. In the software, what we will see, what you will get on the machine. Exactly. Okay, and Aspid capability is for 2 to 5 axis milling, 2 to 22 axis turning, 2 to 5 axis wire ADM, high speed simultaneous 3, 4, and 5 axis toolpath, Swiss turn, Milton, and B axis multitasking machine. So I can say any CNC VMC machines हो market में, then Aspid can support that. This is the plus point of the Aspid CAM software, because there are so many machines in a different, like a Swiss Sun, like we can say the sliding end machines. Okay, so these all machines can be handled with the one platform. Okay, so it is called powerful full spectrum CAM system. Another thing is that Aspid is very good for high performance machining as well as the 3D printing. Also, we can Aspid can support, and also the future manufacturing is hybrid manufacturing. Okay, so also Aspid CAM software can support hybrid manufacturing also. You can see the one video for the hybrid manufacturing with the Aspid CAM system. You can see here the Aspid look like this. We can see the realistic simulation. This is this was done additive manufacturing with the Aspid CAM software. Now it is subtractive process. So Aspid can support for hybrid manufacturing also. Okay, this is a small video, but I will this video show you in the end, so it will be better. So now we will start
software demonstration means how the Aspid CAM software works. कि आज का मेन जो हमारा सेशन जो रहेगा फॉर द एस्पिड वर्क कैसे करता है फॉर मिलिंग एज वेल एज इन टर्निंग ऑपरेशंस. ओके, तो जैसे ये जो विंडो देख रहे हो पूरा एस्पिड सॉफ्टवेयर मैंने ओपन किया हुआ है. ओके, तो यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल ओपन करता हूँ. ओके, जैसे ही मैंने न्यू फाइल ओपन किया यू कैन सी वन डायलॉग बॉक्स फॉर द न्यू फाइल. जैसे कि कंपनी में कोई टेम्पलेट बनाया हुआ है तो सो वी कैन डायरेक्टली ओपन दैट टेम्पलेट हियर. अभी टेम्पलेट नहीं है देन वी विल गिव ओके. ओके, तो ये बेसिक्स विंडो है एस्पिड का. तो जैसे जो स्काई कलर है उसको हम बोलते हैं हमारा वर्किंग एरिया. ओके, जहाँ पे हमें प्रोग्रामिंग करना है, सिमुलेशन जो दिखेगा वो सब कुछ इधर करना है. ओके, लेफ्ट हैंड साइड है फीचर जो लिखा हुआ है. ओके, तो यहाँ पे जो रहेगा उसको हम बोलते हैं फीचर ट्री. यानी जैसे कैड सॉफ्टवेयर है बाकी सभी सॉफ्टवेयर में हमारा जो भी प्रोसेस हम करते हैं. ओके, जैसे कि यहाँ पे हमने जो पार्ट है पार्ट के लिए जितना ऑपरेशन हम करेंगे वन बाय वन तो उसका सीक्वेंस यहाँ पे शो करेगा. नीचे जो पोर्शन है उसको हम बताते हैं प्रॉपर्टी मैनेजर. ओके, जैसे कि कुछ भी हम सिलेक्ट कर रहे हैं लाइक डायमीटर हो. ओके, जो भी इसकी प्रॉपर्टी है तो यहाँ पे शो करेगी. ओके, बाकी यहाँ पे पूरा रिबन है. ओके, कमांड बार है. ओके, और यहाँ पे जैसे कि ये जो एक्स वाई जेड है. ओके, हम यहाँ पे इसे देख सकते हैं आइसोमेट्रिक करके. ये जो एक्स वाई जेड है ओके उसको हम बोलते हैं वर्क कोऑर्डिनेटर है. और जो येलो है उसको हम बोलते हैं ग्लोबल एक्सिस है. ठीक है, तो यहाँ पे हमें जैसे कि अभी आप देख रहे हो विंडो वो टर्निंग के लिए विंडो ओपन हुई है. तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा सॉलिड टर्न. नीचे राइट हैंड साइड बॉटम में लिखा हुआ आएगा सॉलिड टर्न. यहाँ पे ऑप्शन है विंडो चेंज करने के लिए कि हमें मिलिंग करना है, अभी टर्निंग में वर्क करना है या वायर रीडीएम करना है हमें सॉलिड वायर. तो जस्ट वी हैव टू क्लिक हियर ओनली. जैसे कि मैंने स्विच टू सॉलिड मिल कर रहा हूँ तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो मिलिंग के अकॉर्डिंग विंडो सेट हो जाएगा. और यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा सॉलिड मिल. ठीक है, यहाँ पे मैंने टर्निंग के लिए स्विच कर रहा हूँ, स्विच टू सॉलिड टर्न. देन विंडो विल बी प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू सॉलिड टर्न. ओके, वायर ईडीएम कर रहा हूँ मैं तो वायर ईडीएम के अकॉर्डिंग और जो भी उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है वो सब कुछ सेट हो जाता है ऑटोमेटिकली. तो मेन थिंग इज दैट एन एस्पिड कैम सॉफ्टवेयर किसी ने मिलिंग सीख लिया तो उसके लिए टर्निंग है वायर ईडीएम अदर जो भी चीज़ है वो इजी हो जाता है. ओके, प्रोसीजर विल रिमेन सेम. सो आई विल शो यू टुडे फर्स्ट मिलिंग. ओके, मिलिंग हम देखेंगे. ओके, तो जैसे कि मैंने पीपीटी में दिखाया था आपको कि कौन कौन सी चीज़ की जैसे कि सॉफ्टवेयर हो या आप मैन्युअली प्रोग्राम कर रहे हो. अभी हमें देखना है सॉफ्टवेयर में. तो सॉफ्टवेयर में सबसे पहले सॉफ्टवेयर ओपन किया तो सबसे पहले ज़रूरत क्या है तो मैंने बताया था आपको ड्राइंग ऑफ द पार्ट और 3D मॉडल. ओके, तो वी हैव टू इम्पोर्ट 3D मॉडल कि हमें कौन सा पार्ट डिज़ाइन अरे यहाँ पे प्रोग्रामिंग करना है. ठीक है, तो फर्स्ट वी हैव टू ओपन दैट पार्ट. मेरे पास एक मिलिंग का पार्ट है. ओके, तो वो पार्ट हम ओपन किया मैंने. यहाँ से विंडो सेट किया मैंने मिलिंग का, यहाँ पे मिलिंग आ गया. ओके, ये पार्ट है. ओके, वो हम डेमोस्ट्रेशन के लिए यूज़ करेंगे. ओके, इसके अंदर जो जो ऑपरेशंस लगते हैं और ये पार्ट को हम कंप्लीट करेंगे मिलिंग के लिए. ठीक है, तो फर्स्ट हमारा काम हो गया. ओके, वैसे मैं यहाँ पे आपको पॉइंट दिखाता हूँ फॉर एन एग्जांपल. जैसे कि आप देख रहे हो ये विंडो मैंने नोट्स है जैसे कि मैंने आपको बताया था जो पॉइंट्स उसके हिसाब से. तो फर्स्ट जो पॉइंट्स था हमारा इंपोर्ट कैट फाइल. ओके, तो फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीटेड इंपोर्ट. अभी ये जो पार्ट्स है उसका हमें कौन सा ओके तो वहाँ पे हमारा पॉइंट है सिलेक्ट अप्रोप्रिएट मशीन टूल. ओके, जनरली क्या होता है कि ये मिलिंग मशीन है तो मिलिंग मशीन मार्केट में बहुत सारा है. जैसे कि मैंने आपको बताया कि रियलिस्टिक सिमुलेशन दिखता है
तो जो कंपनी में जो मशीन्स रहता है उसका मॉडल नंबर के हिसाब से हम लोग मशीन यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसको हम बोलते हैं इंपोर्ट ईएमएस। ईएमएस है उसको हम बोलते हैं एस्प्लिट मशीन सेटअप। तो अभी मेरे पास एक मशीन का फाइल है, तो आई विल अपलोड ही, मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा। मेरे पास ये एक मशीन है व्हीलिंग के लिए, उसको मैंने अपलोड कर दिया। ओके, हम यहाँ पे वो मशीन भी देखना है तो वी कैन सी। ओके, यहाँ पे पूरा मशीन हम देख सकते हैं, पूरा बॉडी के साथ देख सकते हैं। ओके, सो हमें जैसा रियलिटिक सिमुलेशन मैंने जो बताया, तो रियलिटिक सिमुलेशन हम मशीन में देख सकते हैं कि जब टूल वर्क कर रहा है और उसका एंट्री एग्जिट हो रहा है, तब टूल कहीं पे कोलिजन हो रहा है या डिटेक्ट हो रहा है तो सॉफ्टवेयर हमें शो करेगा। तो सो आवर मशीन विल बी फ्री फ्रॉम द एक्सीडेंट्स। ओके, तो एक ये चीज़ है। ओके, मैं आपको बाद में प्रोसेस रन करके दिखाऊंगा। ठीक है, एक ये चीज़ हो गई। सेकंड पॉइंट हो गया हमारा। थर्ड है क्रिएट स्टॉक एंड डिफाइन टारगेट। जैसे कि ये पार्ट है हमारा। ओके, तो ये पार्ट के लिए हमें कितना रॉ मटेरियल हमारे पास, जो साइज़ में रॉ मटेरियल अवेलेबल है उसमें से हमें ये पार्ट बनाना है। ओके, अकॉर्डिंग टू उसके हिसाब से हमें ऑपरेशंस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे स्टॉक बनाना है। तो मैं यहाँ से स्टॉक बनाता हूँ, एक ब्लॉक लेता हूँ मैं। ओके, इसमें बड़ा भी स्टॉक ले सकते हैं। अभी जैसे मैंने क्लिक किया है तो यहाँ पे रेक्टेंगल ब्लॉक है, वो ये जो साइज़ है उसके हिसाब से पूरा ब्लॉक आ गया है कि भाई ये जो एक्स है उसमें 120 लेंथ है। ओके, विड्थ है वो 90 है वैसे ये वाई डायरेक्शन में, और जेड है वो 30 है। ओके, तो मैं अभी जेड जो है उसमें जो पॉजिटिव डायरेक्शन है, प्लस डायरेक्शन है, वहाँ पे 2 एक्स्ट्रा रखता हूँ। सो हम वहाँ पे फेसिंग का ऑपरेशन देख सकते हैं। ओके, बाकी सभी साइड पे हमें रखना है एक्स्ट्रा मटेरियल, तो वी कैन कीप। तो यहाँ पे मैं कलर दे देता हूँ कि हमारा स्टॉक है वो कौन से कलर का रहेगा। मैंने ये कलर दे दिया और मैंने स्टॉक को ऐड कर दिया। और दूसरा हमें बनाना है कि ये स्टॉक हो गया, उसमें से टारगेट कौन सा है हमारा। चलो, सॉलिड में हमारा टारगेट है तो वो टारगेट को हमें सिलेक्ट करना है। टारगेट सिलेक्ट कर दिया, उसको मैं अलग कलर देता हूँ, ये कलर दिया। ओके, इसको मैंने ओके किया। अभी इसको देखना है, हमारा स्टॉक एंड टारगेट दोनों चीज़ देखनी है। ओके, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, मैं ये मशीन को ऑन ऑफ करना है सब कुछ, तो हम यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो अभी ये जो है वो है स्टॉक। तो यहाँ से ऑन ऑफ, जैसे कि स्टॉक को ऑन ऑफ किया, टारगेट को ऑन ऑफ किया। अभी आप देख सकते हो कि जो स्टॉक है, ओके, और ये जो लाइट येलो कलर है वो मटेरियल हमें रिमूव करना है। ओके, तो स्टॉक एंड टारगेट डिफाइन हो गया। अभी हमारा जो काम रहेगा वो है क्रिएट फीचर, क्रिएट टूल। तो यहाँ पे जो टूल है, ओके, हम नया टूल यानी जैसे कि कस्टमाइज टूल है तो बना सकते हैं। बाकी हमें टूल को क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सॉफ्टवेयर के अंदर जितने भी मार्केट में स्टैंडर्ड टूल अवेलेबल रहते हैं वो सभी की लाइब्रेरी अवेलेबल है। ठीक है, तो जब हम ऑपरेशंस करेंगे तभी हम डायरेक्टली वी हैव टू सिलेक्ट ओनली। ठीक है, कि कितने का एनमिल चाहिए फेसिंग के लिए, पॉकेटिंग के लिए, ड्रिलिंग के लिए, वो सब कुछ हम डायरेक्टली तब सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्रिएट फीचर। तो फीचर जो बनाना है, ओके, जैसे कि हम कैड सॉफ्टवेयर की बात करें तो स्केच बनाते हैं, उसके बाद उसको जैसे कि एक्सट्रूड हो गया तो उसको एक्सट्रूड करते हैं वो, और फीचर में क्रिएट करते हैं। तो उसके पहले हमें एक चेन बनानी पड़ती है। ओके, तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, जैसे कि टूल पाथ को डिफाइन करने के लिए हमें एवरी टाइम जो भी ऑपरेशंस करना है उसके लिए हमें चेन बनानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेन बनाएंगे। मुझे फेसिंग ऑपरेशन जो हमने 2 जितना मटेरियल ज़्यादा रखा हुआ है उसके लिए मैं चेन बनाएंगे हम लोग। तो उसके लिए बेसिक प्रोसेस है, एक बाउंडिंग बॉक्स करके ऑप्शन है। तो मुझे जो स्टार्टिंग जो फेसिंग के ऑपरेशन के लिए यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाना है कि, तो उसके लिए रेफरेंस के लिए मैंने एक बाउंडिंग बॉक्स बनाया। तो यहाँ से अभी मुझे 2D का कुछ भी चेन बनाने के लिए यहाँ पे ऑप्शंस है। ओके, एक ये है अनबाउंडेड ज्योमेट्री और है क्रिएट फीचर। ओके, क्रिएट फीचर में जाएंगे हम लोग।
तो उसके लिए फीचर के लिए पूरा एक रिबन ओपन हो जाएगा। उसके अंदर है मैनुअल चेन एंड ऑटोमेटिक चेन। मैं अभी आपको दिखाऊंगा मैनुअल चेन। ओके, मैनुअल चेन में जाके हमें एक रेक्टेंगल क्रिएट करना है। मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट कर दिया। तो यहाँ पे आप शो कर रहे हैं, देखो एक चेन बना दिया। तो चेन को हमें नाम देना है तो नाम दे सकते हैं कि भाई ये चेन जो है वो फेसिंग के लिए चेन बनाया मैंने। ओके, फेसिंग ऑपरेशन के लिए। तो एवरी टाइम, बराबर सभी टाइम हमें करना है, चेन बनाया, चेन को सिलेक्ट करो, मशीनिंग में जाके यहाँ पे बहुत सारा अलग अलग मशीन के लिए अलग अलग मॉड्यूल्स दिया हुआ है। ओके, तो जैसे कि मिल ट्रेडिशनल हो गया, प्रोडक्शन हो गया, फ्री फ्रॉम हो गया, मोल्ड के लिए है, वैसे सभी ऑप्शंस यहाँ पे दिया हुआ है मॉड्यूल्स। तो यहाँ पे हमें देखना है मिल ट्रेडिशनल में ये सब ऑपरेशंस, उसमें है फेसिंग ऑपरेशन। मैंने फेसिंग ऑपरेशन सिलेक्ट किया। ओके, अभी जो मैं चीज़ दिखा रहा हूँ स्पीड में, वो सभी के लिए, सभी ऑपरेशंस हो, टर्निंग भी हम देखेंगे, सभी के लिए इट विल रिमेन सेम, प्रोसीजर रिमेन सेम। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ देनी है हमें। ठीक है, तो जनरल के अंदर हमने पहले देना है कि ऑपरेशंस का नाम देना है, तो मैंने दे दिया फेसिंग। बाद में यहाँ से टूल सिलेक्ट करना है। यहाँ से लाइब्रेरी में जाके हम लोग टूल सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सब टूल्स दिया हुआ है, बॉल मिल हो गया, बोरिंग बार हो गया, चेम्फर मिल, ड्रिल हो गया, एंड मिल हो गया, फेस मिल, टैप, थ्रेड मिल, सभी टूल्स यहाँ पे अवेलेबल है जो मार्केट में स्टैंडर्ड रहते हैं। तो यहाँ से मैं एंड मिल सिलेक्ट करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे सभी एंड मिल है, उसमें से मैंने चलो 40 mm का एंड मिल यूज़ किया। ओके, यहाँ पे मैंने चलो 20 mm का एंड मिल यूज़ कर लिया। उसके बाद ही यहाँ पे देना है हमें फीड स्पीड। ओके, वो सब कुछ देना है, वो अकॉर्डिंग टू टूल के ऊपर से, टूल कौन सी कंपनी का है, उसका मैक्सिमम स्पीड कितना रख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू वी हैव टू डिसाइड हियर। तो उसके बाद है स्ट्रेटेजी। हाँ, उसके बाद ही यहाँ पे कमेंट में कुछ लिखना है तो उसके लिए है स्ट्रेटेजी हो गया। स्ट्रेटेजी में यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रेटेजी स्प्लिट में अवेलेबल है। जैसे कि यहाँ पे है फेसिंग के लिए तो जिगजैग है। ओके, जिगजैग है, वैसे यहाँ पे क्लाइंब है। ओके, कन्वेंशनल है, अभी हम जिगजैग देखेंगे। ओके, दूसरा ऑप्शन है वन पास। तो उसमें नो रखना है, बिकॉज जैसे कि ये हमारा जो है वाइड, हमारा विड्थ था वाई डायरेक्शन में वो था 90। जो हम लोग 90 डायमीटर का टूल यूज़ करेंगे, एनमिल यूज़ करेंगे, तो वन पास में पॉसिबल है, अदरवाइज इट विल टेक मोर पासिस। ठीक है, तो वो सब कुछ हो गया। देन यहाँ से मैंने डन करूँगा तो यहाँ पे हमें टूल पाथ दिखेगा। देखो जो रेड है वायर फ्रेम, उसमें यहाँ से टूल एंट्री हुआ और ऐसे कट हुआ है। इसको हमें रियलिस्टिक सिमुलेशन देखना है तो हम यहाँ से प्ले करके देख सकते हैं कि पार्ट ऐसे कट हो रहा है। ठीक है, अभी टूल हमें बड़ा करके देखना है, जो भी टूल, अभी कोई भी ये सॉफ्टवेयर के अंदर, जैसे कि हमने एक बार बना दिया प्रोग्राम, उसके बाद कुछ भी हमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है तो डायरेक्ट वी हैव टू डबल क्लिक ऑन दैट ऑपरेशन। देन यहाँ से हम मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि पूरा टूल चेंज करना है, कि अभी मैंने 20 का एनमिल से किया, लेकिन मुझे करना है ओके 40 का एनमिल से यूज़ करना है। ओके, तो मैंने 40 किया और डन किया मैंने, तो वो उसके हिसाब से हमारा पासिस है वो कम हो गया। ओके, यहाँ पे 1 2 3 4 और 5th पासिस में पूरा पार्ट कंप्लीट हो रहा है। ओके, तो मॉडिफिकेशन हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये फेसिंग ऑपरेशन हो गया। बाकी का जो अभी ग्रीन कलर में जो दिख रहा है हमें यहाँ पे है, उसको हम बोलते हैं पॉकेट। ओके, यहाँ पे दूसरा पॉकेट है और होल है विथ चेम्फरिंग है। तो वो सब कुछ हमें ऑपरेशन स्टेप बाय स्टेप देखना है। वापस मैंने बताया वैसे कि दूसरा ऑपरेशन करना है तो उसके लिए हमें चेन चाहिए। तो पॉकेटिंग के लिए यहाँ पे वी हैव टू सिलेक्ट दिस सरफेस फॉर पॉकेटिंग। ओके, और यहाँ पे क्रिएट फीचर्स में पॉकेट का डायरेक्ट ऑप्शन है, तो क्रिएट चेन पॉकेट करेंगे तो यहाँ पे देखो यहाँ पे पॉकेट बन गया है। ओके, यहाँ पे और दूसरा दो चीज़ आई है, आइलैंड, यानी जो हमने ये सरफेस सिलेक्ट किया उसमें हमें ये दो
पीस है, एक रेक्टेंगल है और सर्कुलर पोर्शन है, उसको हमने बोला है आइलैंड। ओके, कि टूल वहाँ पे टच नहीं होना चाहिए, वैसे हमें ये मटेरियल रिमूव करना है। ओके, तो हम सिर्फ ये जो है सेकंड नंबर का जो बाउंड्री है, चेन है, उसको सिलेक्ट करके वापस वही प्रोसीजर करना है। फेसिंग की जगह क्या आएगा, पॉकेटिंग। पॉकेटिंग करेंगे हम, तो यहाँ पे जैसे मैंने आगे दिया था वैसे ही नाम देना है। ओके, हमें रफ पास यस, फिनिश पास चाहिए। ओके, तो यस दे दो, फिनिश पास दे दिया हमने। ओके, कौन किसके लिए, जैसे ओके, और बाद में हमें अलग से करना है तो हम अलग से भी कर सकते हैं फिनिश पास। ओके, और यहाँ पे हमें टूल सेलेक्ट करना है। तो टूल हमें देखना है अभी, जैसे कि मैंने उसमें फेसिंग में बड़ा टूल यूज़ कर सकता था, तो इसके लिए हमें कौन सा टूल यूज़ करना है, उसके लिए हमें पार्ट का, जैसे कि ये गैप है। ओके, यहाँ पे गैप है तो उसके हिसाब से वी हैव टू सिलेक्ट टूल। चलो, मैंने यहाँ पे 7 mm का एनमिल ले लिया। स्ट्रेटेजी सेट करना है तो यहाँ पे कि कैसे, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन है कॉन्सेंट्रिक इन। ओके, तो इनमें कैसा है कि टूल हमारा कहीं जो कॉर्नर्स है, जो हमारा साइड फेसिस है सब ये, वहाँ पे कहीं पे एक जगह उतरेगा और वो कट होते होते अंदर की ओर आएगा। सेकंड है कॉन्सेंट्रिक आउट है। ओके, उसमें क्या होगा, कहीं पे एक जगह प्लंज करेगा, देन वो आउटसाइड की ओर आएगा। वैसे यहाँ पे अलग अलग स्ट्रेटेजी है। चलो, हमने ये रखा कॉन्सेंट्रिक आउट। ओके, टोटल डेप्थ इज इम्पोर्टेंट, कि भाई टोटल डेप्थ कितनी है। तो यहाँ पे चलो ये पार्ट है हमें पता नहीं है, तो डायरेक्टली यहाँ पे एरो पे क्लिक करके वी कैन डिफाइन विथ दिस पॉइंट कि यहाँ तक डेप्थ है। तो अभी 18 जितना डेप्थ है। ओके, तो 18 डेप्थ दे दिया हमने। ओके, और यहाँ पे इंक्रीमेंटल डेप्थ, अभी यहाँ पे डिफॉल्ट आ रहा है 4.5 mm। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि 18 mm का टोटल डेप्थ है, उसमें हमने 4.5 mm का डेप्थ ऑफ कट रखा है, यानी इंक्रीमेंटल डेप्थ। यानी ये जो है वो 4 पासिस में पूरा मटेरियल रिमूव होगा। जैसे कि मैंने 6 कर दिया, तो उसका पासिस कितना हो गया, तो 3 पासिस में हो गया। ओके, वो कटिंग टूल जो है हमारा उसका मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, सेकंड थिंग पॉकेट में जाके, ओके, जैसे कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो शो करेगा कि आइलैंड फीचर है, ये दो को छोड़ के काम होगा, यानी दो जो चीज़ है। ओके, वो उसको भी रिमूव करना है तो हम यहाँ से ये दोनों आइलैंड को रिमूव कर देंगे तो पूरा मटेरियल रिमूव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है रफिंग में, यहाँ पे हमें देना है कटिंग स्पीड जो भी है स्टैंडर्ड, उसके हिसाब से देना है। ओके, मैं यहाँ पे डन करता हूँ। ओके, तो आप टूल पाथ देख सकते हो और उसका हम सिमुलेशन करेंगे। मैंने वो जो ऑप्शन रखा था स्ट्रेटेजी में, कॉन्सेंट्रिक आउट, यानी एक जगह हुआ और धीरे धीरे बाहर की ओर जाएगा। देखो, अभी यहाँ पे कटिंग टूल है, मैंने बड़ा ले लिया तो वो यहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है। यहाँ से हम स्पीड को बढ़ा सकते हैं। अभी ये टोटल जो रिमूव हुआ वो 3 पासिस में रिमूव हुआ है, 3 पासिस में। ओके, अभी जैसे कि 6 mm का डेप्थ ऑफ कट लिया है, लेकिन कोई टूल है उसका मैक्सिमम डेप्थ ऑफ कट 3 mm है। ओके, तो वो यहाँ पे हम चेंज करना है तो बाद में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 mm कर दिया, तो उसके हिसाब से पूरा जनरेट हो जाएगा। मीन्स कि हम सॉफ्टवेयर में ये सिमुलेशन देख के ओके एनालिसिस करना है तो कर सकते हैं। तो ब्लू जो है, ब्लू कलर वो है हमारा टारगेट। ओके, तो ये सेकंड पॉकेटिंग हो गया। तो फटाफट में आपको ये जो है यहाँ पे ऑपरेशंस वो भी पॉकेटिंग से होगा। तो डायरेक्टली सिलेक्ट दिस सरफेस, क्रिएट फीचर, क्रिएट पॉकेट। ओके, यहाँ पे मैंने पॉकेट सिलेक्ट कर लिया। ओके, यहाँ पे मशीनिंग में जाके सॉलिड मिल ट्रेडिशनल उसमें करेंगे हम पॉकेटिंग। ओके, तो यहाँ पे पॉकेटिंग सेम बड़ा प्रोसीजर रहेगा जैसे हमने ये फर्स्ट पॉकेटिंग में किया। ओके, यहाँ पे हमें जो भी एनिमल यूज़ करना है, ओके, जो अवेलेबल है। ओके, और एक चीज़ है जैसे कि हाँ, ये जो पार्ट है, ये पार्ट की बात करेंगे हम, तो ये पॉकेटिंग के अंदर यहाँ पे कर्वेचर है, यानी यहाँ पे रेडियस है। ओके, तो हमें उसको मेज़र करना है ऑपरेशन से पहले। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ।
ओके, यहाँ पे हम डायमेंशंस यहाँ पे भी देख सकते हैं कि उसका डायमेंशन है 6 mm। ओके, ये जो है कर्वेचर उसका रेडियस है 6 mm, मीन्स डायमीटर है 12 mm। तो क्या होता है कि हमारा टूल 12 mm या तो 12 mm से छोटा होगा तो यहाँ से स्मूथनेस आएगी, लेकिन मैंने 12 mm से बड़ा टूल यूज़ किया, बड़ा डायमीटर, जैसे कि 20 mm का मैं एनमिल यूज़ कर रहा हूँ फॉर दिस पॉकेटिंग, तो यहाँ पे थोड़ा सा मटेरियल छूट जाएगा। ओके, वैसे करके देखते हैं। तो कटिंग टूल सिलेक्ट करने में हमें ओके ये बेसिक्स देखना होता है। सिलेक्ट, यहाँ से हम करते हैं पॉकेटिंग, यहाँ से मैंने 20 mm का एनमिल यूज़ किया। ओके, बाकी सब कुछ सेम रखता हूँ। हाँ, दूसरा है स्ट्रेटेजी के अंदर यहाँ पे डेप्थ ऑफ कट। अभी यहाँ पे जो पॉकेट किया हमने डेप्थ ऑफ कट और यहाँ पे डेप्थ ऑफ कट अलग अलग है। बड़ा दोनों डेप्थ ऑफ कट सेम रहता तो हम दोनों का साथ में पॉकेटिंग करना है तो कर सकते हैं, लेकिन दोनों का डेप्थ है वो अलग अलग है। यहाँ से डेप्थ मुझे देखना है तो यहाँ तक है, तो कितना है तो 24 mm है। यहाँ पे हमने इंक्रीमेंटल डेप्थ है वो 6 रखता हूँ। ओके, और यहाँ से मैंने ओके किया। यू कैन सी द टूल पाथ ओके फॉर दिस पॉकेटिंग। तो यहाँ पे मैं सिमुलेशन करता हूँ, पूरा पार्ट का सिमुलेशन देखते हैं अभी। ओके, ये सेकंड हमारा पॉकेटिंग, फर्स्ट जो पॉकेटिंग हुआ था वो है। और यहाँ पे हमने जो किया, जो 20 mm का एनमिल यूज़ किया था, अभी आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे कुछ मटेरियल छूटा हुआ है। ठीक है, बिकॉज हमने टूल है वो बड़ा डायमीटर का, लेकिन इंडस्ट्री में होता है कि भाई चलो ये बड़ा ज़्यादा मटेरियल्स हमें रिमूव करना है, वहाँ पे हमने बड़ा टूल यूज़ करके साइकिल टाइम रिडक्शन करना है तो कर सकते हैं। अभी इसको वापस मुझे सिर्फ इतने के लिए अलग से टूल लेके हमें काम करना है तो अभी कर सकते हैं हम। तो वही ऑपरेशन को मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे करूँगा। एक ऑप्शन है रेस मशीनिंग। रेस मशीनिंग यानी जो ऑपरेशंस किया उसके अंदर, चलो मैंने 7 mm का एनमिल यूज़ किया। ओके, और सभी डेप्थ वो सब कुछ बराबर है, ओके दिया मैंने। तभी आप देखोगे मैं सिर्फ ये दो ऑपरेशंस को मुझे प्ले करना है तो दोनों ऑपरेशन को सिलेक्ट करके हम प्ले कर सकते हैं। आप देख सकते हो कि भाई ये पहले मैंने बड़ा एनमिल से किया, उतना मटेरियल मैंने रिमूव कर दिया, उसके बाद इसको मैंने अलग से मशीनिंग किया। ओके, तो ऐसा ऑप्शन सब दिया हुआ है सॉफ्टवेयर के अंदर। ओके, एक ये चीज़ हो गई। अभी हमें देखना है, अभी देखो जो भी रेड कलर में वायर फ्रेम में जो दिख रहा है वो है हमारा टूल पाथ। ओके, सब डिस्प्ले ऑप्शंस में दिखाता हूँ। राइट क्लिक करके यहाँ पे मास्क करके ऑप्शन है, सब डिस्प्ले ऑप्शंस के लिए। जैसे कि मुझे टूल पाथ अभी नहीं देखना है, वरना कहीं पे एनोटेशंस हो, ओके सॉलिड मॉडल नहीं देखना है, तो सब ऑप्शंस यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, फीचर को बंद करना है, ठीक है, फीचर को मैं ऑन रखता हूँ, ज्योमेट्री को भी ऑन रखता हूँ, टूल पाथ को मैं अभी ऑफ किया मैंने। ओके, तो अभी हमें लास्ट ये पार्ट के लिए देखना है कि होल क्रिएट करना है। ओके, तो होल क्रिएट करने के लिए पहले हमें देखना होगा कि होल का डायमेंशन ड्रिल मार्केट में अवेलेबल नहीं रहता है। ओके, हमें 4 मिल जाएगा, 4.5 मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, 5 हो गया तो ये होल बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो अभी उसका डायमीटर है 4.917 और उसके साथ हमें देखना है चेम्फर करना है। ठीक है, और यहाँ पे नंबर ऑफ होल है। ठीक है, तो होल क्रिएट करने के लिए वापस हमें सबसे पहले क्या करना है, जैसे कि सब में हमने किया क्रिएट चेन। तो चेन बनाने के लिए यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे पी टॉप करके वो ऑप्शन है, जैसे कि बहुत सारा होल है लेकिन अलग अलग है सबका होल का डायमीटर, तो हम पी टॉप का यूज़ करके कर सकते हैं इधर।
ओके, उसके अलावा है यहाँ पे होल रिकॉग्निशन करके है ऑप्शन। ओके, और तीसरा ऑप्शन है, मैं अभी दिखाऊंगा आपको, लिगेसी होल रिकॉग्निशन। ओके, भले यहाँ पे सब सेम होल है, लेकिन लिगेसी का होल का यूज़ करके, ओके, जैसे कि यहाँ पे नंबर ऑफ होल है विथ डिफरेंट डायमीटर, तो यहाँ पे गिव हमें इनपुट सिर्फ देना है मिनिमम एंड मैक्सिमम डायमीटर। यानी ये जो पूरा पार्ट्स है हमारा, उसके अंदर मिनिमम डायमीटर और मैक्सिमम जो रेंज देंगे, उसके अंदर जितने भी होल हो गए, ओके, वहाँ पे वो फीचर क्रिएट कर देगा। ओके, चलो मैंने जीरो और हमारा जो डायमीटर था 4.917, ओके, तो मैंने यहाँ पे 20 रखूँ तो भी चलेगा, 5 रखूँ तो भी चलेगा। मैंने ओके कर दूंगा तो यहाँ पे फीचर बन जाएगा, देखो ऐसा। और ये ऑटोमेटिकली जो होल रिकॉग्निशन है, उसका डेप्थ है, चेम्फर है, मतलब सब कुछ ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके एक फीचर यहाँ पे क्रिएट कर देगा। अभी वो होल फीचर को मैं सिलेक्ट करके, यहाँ से हमें सिलेक्ट करना है, देखो अभी ड्रिलिंग, तो हम पहले ड्रिलिंग में जाके एक बार चेक करते हैं कि कौन कौन सा ड्रिल अवेलेबल है। ठीक है, टूल में जाके, तो यहाँ पे हम देखेंगे ड्रिल, और ड्रिल में हमें चाहिए 4 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ पे 4.2, 4.3, 4.5 और 5 है। ओके, 4.5 छोटा हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड एक और ऑप्शन है होल क्रिएट के कि जैसे कि मेरे पास छोटा सा है, लेकिन उससे मुझे होल क्रिएट करना है, तो स्पायरलिंग का भी यूज़ कर सकते हैं हम। ओके, यहाँ पे तो मैं आपको स्पायरलिंग दिखाता हूँ पहले। तो स्पायरलिंग में हम 3 mm 4 mm का एनमिल या तो ड्रिल लेके, ओके, होल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्पायरलिंग में करेंगे हम। ओके, यहाँ पे जनरल में जाके हमें टूल सिलेक्ट करना है। तो स्पायरलिंग के लिए आप एनमिल भी यूज़ कर सकते हो और ड्रिल भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि एनमिल मैंने 3 या 4 mm का एनमिल, 3 mm का एनमिल यूज़ किया। यहाँ पे मैंने कटिंग स्पीड दे दिया, ओके, फीड दे दिया, ओके, स्ट्रेटेजी देना है। तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है, इनसाइड आउट एंड आउटसाइड इन। जैसे कि पहले जो 3 mm का हमारा एनमिल है, वो बीच में जाएगा, देन आउट की ओर आएगा। ओके, तो वही रखना है हमें। ओके, और यहाँ पे टोटल डेप्थ है, वो मैंने जैसे बताया आपको, ऑटोमेटिकली विल कैलकुलेट हो जाए, वो कैलकुलेट हो जाती है जब हमने होल रिकॉग्निशन से होल क्रिएट करते हैं तब। ओके, तो 50 mm डीप्थ है। ओके, दूसरा है इंक्रीमेंटल डेप्थ है, 3 mm है, वो हम चेंज कर सकते हैं। ओके, स्टार्टिंग डेप्थ 0 रखना है। ओके, यहाँ पे मैं ओके करता हूँ। ओके, अभी हम देख सकते हैं ये स्पायरलिंग, ओके, इसका टूल पाथ दिख रहा है हमें। ओके, उसको हम रन करके देखते हैं। देखो ऐसे होगा स्पायरलिंग, स्पीड बढ़ा सकते हैं हम। ओके, तो स्पायरलिंग से हम ये होल क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सेकंड थिंग कि अभी यहाँ पे है चेम्फर, तो चेम्फर के लिए भी हमें फीचर तो वही सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट मिलिंग, ड्रिलिंग के अंदर हम जाएंगे, और यहाँ पे चेम्फर एनमिल है हमारे पास लाइब्रेरी में। तो चेम्फर एनमिल यूज़ करेंगे, 8 का 10 का कोई भी कर सकते हो आप। ओके, चेम्फर एनमिल यूज़ किया मैंने। ड्रिल, ओके, यहाँ पे अभी चेम्फर डायमीटर देना है, यानी जो हमारा ये चेम्फर का डायमीटर ये है। ओके, यहाँ पे 7 आ रहा है ऑटोमेटिकली, लेकिन कभी 7 नहीं है, तो हमें चेक करना है, तो यहाँ पे क्लिक करके हम ये जो सरफेस है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे शो करेगा। ओके, दूसरा है स्टार्टिंग, ये हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली चेम्फर डायमीटर के ऊपर से कैलकुलेट कर लेता है। ओके, और दूसरा है यूज चेम्फर डायमीटर, ये हो गया। ओके, और यहाँ पे मैंने ओके किया। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे चेम्फर, ये दोनों ऑपरेशंस को एक बार चेक करते हैं।
देखो ये हो गया चेम्फर। ओके, तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, सो हाउ इट इज़ वेरी इजी सॉफ्टवेयर। ओके, जैसे कि डिफरेंस की बात करेंगे कि फॉर what are the difference for the manual programming as well as in CAM सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग। तो हमें पता है कि मैन्युअली प्रोग्रामिंग हम जब भी करते हैं, सो वी डोंट हैव एनी ऑप्शन फॉर विजुअल चेक बिफोर कटिंग द पार्ट ऑन द मशीन, रियलिटी रियल मशीन। ओके, इन सॉफ्टवेयर में मेन वो बेनिफिट है कि वी कैन सी द फुल मशीन सिमुलेशन विथ सर्टिफाइड पोस्ट प्रोसेसर इन द कैम सॉफ्टवेयर, दिस एस्पिड कैम सॉफ्टवेयर। ओके, एंड ऑल्सो वी नो कि कोई भी प्रोग्राम, और ये सिंपल पार्ट मैंने आपको बताया। ओके, लेकिन हम देखते हैं फोर्थ एक्सिस है, फाइव एक्सिस है। ओके, टर्निंग में भी सिक्स एक्सिस, सेवन एक्सिस है। तो उसके लिए जब भी प्रोग्रामर है, तो कैसा मार्केट में प्रोग्रामर चाहिए जिसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो। ओके, और यहाँ पे स्कैम सॉफ्टवेयर में मेन वो बेनिफिट है कि बेसिक जो मैकेनिकल नॉलेज है वगैरह वो रिक्वायर है फॉर द कैम सॉफ्टवेयर। ठीक है, और दूसरा आप फॉर एन एग्जांपल देखने जाएंगे कि मैन्युअली हम विद इन अ हावर जो भी प्रोग्राम बनाएंगे, वो एक्चुअली प्रोग्राम विद इन अ मिनट्स या सम कपल ऑफ मिनट्स में वो प्रोग्राम हम रेडी कर सकते हैं। ओके, बहुत सारे ऐसे डिफरेंस है कि मैन्युअली एंड कैम सॉफ्टवेयर से हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हो सकता है। हम जो भी एनालिसिस करेंगे मैन्युअली करते हैं, तो ट्रायल एंड एरर मेथड से हम जो भी साइकिल टाइम है वो रिडक्शन करते हैं। ओके, और ऑप्टिमाइज करते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर में हम जो मैक्सिमम जो हम बोल सकते हैं उसको ऑप्टिमल एनसी कोड विथ फ्यू क्लिक्स, बड़ा मिनिमम क्लिक में हम उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी ये पार्ट है, ये पार्ट की हम बात करेंगे कि ये पार्ट में हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको शो कर रहा है। देखो मैंने जो जो ऑपरेशंस किया है, जो वाइट में दिख रहा है, जहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ऑपरेशंस हाईलाइट हो रहा है। तो हमें देख सकते हैं हम कि फेसिंग के लिए कितना टाइम लगा, 1 मिनट एंड 53 सेकंड। ओके, पॉकेटिंग में कितना लगा टाइम, ये कितना टाइम लगा। ओके, तो इस सभी के लिए हमें साइकिल टाइम यहाँ पे शो करेगा। और यहाँ पे जो शो करेगा वो ही 00, यानी आई कैन से 100% एक्यूरेट रहेगा। ये मशीन यहाँ पे जितना साइकिल टाइम आ रहा है कि ये पार्ट बनाने के लिए फॉर एन एग्जांपल जितना मिनट्स लग रहा है उतना ही मिनट्स मशीन पे लगेगा। तो यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर जो प्रोग्रामर है, कैम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर, वो क्या करेगा, यहाँ पे फेसिंग है, मतलब फेसिंग में कुछ स्ट्रेटेजी चेंज करके हम ट्रायल एंड एरर यहाँ पे मेथड कर सकते हैं टू रिड्यूस द साइकिल टाइम। ओके, जैसे कि हम देख सकते हैं कि 6 mm है ये पॉकेटिंग के लिए। तो मैंने यहाँ पे ये हमारा जो पॉकेटिंग, ये वाला पॉकेटिंग था। ओके, तो मैं कुछ अलग स्ट्रेटेजी यूज़ करके भी देख सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे चलो प्रॉफिट मिलिंग किया मैंने। ओके, और उसके बाद ओके डेप्थ ऑफ कट है वो मैंने 3 रखा था, उसको मैंने 6 किया। चलो कुछ चेंजेस करके मैंने देखा। ओके, अभी हम वहाँ पे शो करेंगे तो ओके, तो यहाँ पे है 6 मिनट्स है, तो उसको एक बार रन करना पड़ेगा। सो हम यहाँ पे पूरा एनालिसिस, दैट मीन्स हम एनालिसिस कर सकते हैं। ओके, हम अलग अलग चीज़ करके, जैसे कि मुझे रेस मशीनिंग नहीं करना है, ठीक है, और सिर्फ पॉकेटिंग करना था, तो पॉकेटिंग में हम टूल है वो चेंज कर देंगे। ओके, यानी यहाँ से हम इजीली मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने 20 की जगह ओके मैं यहाँ से 10 mm का एनमिल यूज़ कर लिया। ओके, तो वो वहाँ पे शो उसके हिसाब से करेगा। ओके, यानी एक बार प्रोग्राम बन जाने के बाद हमें ओके मॉडिफाई करके डिफरेंट वे में हमें आउटपुट चाहिए तो हम ले सकते हैं। Okay. और सेकंड थिंग इज़ दैट कि हमें ये पार्ट जो बना दिया उसका मुझे प्रोग्राम चाहिए, एनसी कोड जनरेट करना है। तो फाइल में जाके यहाँ पे सिंपल है, अदरवाइज शॉर्टकट की F9। एनसी कोड जनरेट करने के लिए हमें पोस्ट प्रोसेसर चाहिए, तो यहाँ पे मेरे पास एग्जाम्पल के लिए है, मिलिंग मशीन के लिए दूसान का है पोस्ट। तो वो मैंने ओपन किया।
जस्ट क्लिक करना है तो एनसी कोड जनरेट हो जाएगा। आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे टोटल कुछ 2000 लाइन का प्रोजेक्ट है, बराबर, लाइन से है उसका प्रोग्राम है। ओके, तो हम मैन्युअली बना सकते हैं, बड़ा पॉसिबल नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन इट विल टेक यू मोर टाइम। जैसे कि प्रोग्राम बनाने में 2 घंटा जा रहा है, और वही प्रोग्राम हम सॉफ्टवेयर का हेल्प करके विद इन 10 to 15 मिनट्स वी कैन जनरेट एनसी कोड। ओके, तो ये हो गया एनसी कोड। आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं एनसी फाइल को, जैसे कि यहाँ पे मैंने ओके मिलिंग के लिए ओके मिलिंग एनसी कोड ओके उसको सेव कर सकते हैं। ओके, और इसको यहाँ से हमने मशीन की फाइल है, ओके वो नोटपैड के अंदर हम मशीन को इनपुट दे सकते हैं। ठीक है, तो एक ये चीज़ हुई। हमें कभी ऐसा हो कि सिर्फ एक ही ऑपरेशन का एनसी कोड चाहिए, तो यहाँ से हम एनसी कोड निकाल सकते हैं सिर्फ। जैसे कि ये पॉकेट है, पॉकेट के लिए मुझे एनसी कोड देखना है तो हम डायरेक्ट देख सकते हैं। ओके, एक बार मैंने मशीन के लिए पोस्ट प्रोसेसर ऐड कर दिया तो सॉफ्टवेयर विल वो रिमाइंड कर रखेगा। ओके, सॉफ्टवेयर में आपने देखी होगी बहुत सारी चीज़ें वो वहाँ पे स्टोर हो जाती है, बाद में हमें चेंज करनी है तो कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ हो गई। दूसरा है यहाँ पे एक ऑप्शन है फॉर द एक्सेल रिपोर्ट। ओके, जैसे कि चलो आज मुझे ये चीज़ है उसका मुझे फॉर द कोटेशन रेडी करना है। ठीक है, तो मुझे ये जो पार्ट है उसके लिए क्या क्या टूल लगेगा। ओके, और कितना टूल कहाँ पे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ओके, जैसे कि यहाँ पे 5 टूल यूज़ हो रहा है, हम पाँचों टूल में सेम क्वांटिटी का मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए पूरा सॉफ्टवेयर हमें शो करेगा कि कौन सा टूल कितना ज़्यादा एंगेज हो रहा है। ओके, वर्क पीस के साथ हम यहाँ पे पूरा मैं क्रिएट करके दिखाता हूँ, क्रिएट एन एक्सेल रिपोर्ट। ओके, यहाँ पे पूरा जो डायलॉग बॉक्स है, ओके यहाँ पे जैसे कि आपने कंपनी नेम लिख दिया फॉर द एबीसी कंपनी। ओके, पार्ट नेम में मिलिंग पार्ट हो गया, पार्ट का नंबर दे दो आप। ओके के सोपान। ओके, पार्ट रिवीजन कर दो। ओके, ए है। ओके, मशीन नेम हमने कौन सा मशीन यूज़ किया। ओके, मैंने मोरिसिकी का ब्रांड लिख दिया। ओके, मटेरियल क्लास लिख लो, जो भी हमारा डिस्क्रिप्शन है। ओके, यहाँ पे हम इनपुट दे सकते हैं फॉर द हेडर डेटा ऑल्सो। ओके, ये हो गया, टूल लिस्ट हो गया। ओके, जो जो चीज़ चाहिए हमें। ओके, वन टाइम एक्टिविटी है कि पूरा हमने ये पार्ट के लिए इनपुट दे दिया, देन हम ओके करेंगे। ओके करेंगे तो यहाँ पे एक पूरा रिपोर्ट क्रिएट होगा फॉर दिस पार्ट। Okay, so we can see here all the complete report for this part. ओके, कि ये पार्ट है तो उसमें यहाँ पे जैसे कि दिख रहा है साइकिल टाइम दिख रहा है 28 मिनट्स है। यहाँ पे हमने कौन कौन सा ऑपरेशंस किया है। ओके, यहाँ पे हमें ये जो साइकिल टाइम ये पार्ट के लिए अप्रोक्स रहता है अराउंड 6 to 7 मिनट्स ओनली। तो उसके अंदर जो जो ऑपरेशंस है, टूल है, परफेक्ट यूज़ करेंगे हम। जो भी स्पीड है, कटिंग स्पीड है, डेप्थ ऑफ कट है, वो एक्यूरेट देंगे, तो ये पार्ट इज़ पॉसिबल विद इन 5 to 7 मिनट्स मैक्सिमम। ओके, तो यहाँ पे सभी ऑपरेशन हमने टोटल 6 ऑपरेशन किया। ओके, टूल का नंबर आ गया। ओके, टूल जो यूज़ किया है उसका डायमीटर हो गया। ओके, यहाँ पे हम पूरा डिटेल आपको दिखेगा। ओके, क्या क्या स्पीड हमने यूज़ किया है। ओके, वो हो गया। टूल लिस्ट है, जैसे कि ये पार्ट है तो उसके लिए हमने जो जो टूल यूज़ किया है उसका फोटो के साथ यहाँ पे पूरा स्पेसिफिकेशन डिटेल हमें मिल जाएगा इन एक्सेल। ओके, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे कि इसकी बात करें तो टूल लेंथ कितनी है। ओके, 80 है। ओके, पूरा डिटेल यहाँ पे शो करेगा। ओके, वर्क कोऑर्डिनेटर है। ओके, यहाँ पे टाइम चार्ट है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे
जैसे कि 5 ऑपरेशंस हमने किया है, तो कौन सा एनिमल है, उन्होंने कितना टाइम लिया है। ओके, तो हम देख सकते हैं कि 40 का एनिमल है, बरा वहाँ पे 1 मिनट्स एंड 94 सेकंड हुआ। ओके, चैम्फर एनिमल है 14 सेकंड हुआ। 3 जो रेस मशीनिंग हमने किया था 79 सेकंड हुआ। ओके, वैसे यहाँ पे पूरा टाइम चार्ट मिलेगा हमें, यहाँ पे ग्राफ मिलेगा आपको। ओके, इसको हम बता सकते हैं कि टूल लाइफ आपको यहाँ से पता चलेगा। ओके, और कितना टूल हमें ऑर्डर करना है फॉर द मशीनिंग वो भी हमें पता चलेगा। जैसे कि चेम्फर एनमिल है वो सबसे कम यूज़ हो रहा है। ओके, तो उसका दिखेगा हमें। ओके, यानी कितने टाइम तक टूल वर्कपीस के साथ एंगेजमेंट हुआ है। ओके, तो ये जो ग्राफ से हमें पता चलेगा कि भाई 20 का एनमिल है, वो 10 मिनट्स एंड 47 सेकंड तक वो वर्कपीस के साथ एंगेज रहा है। ठीक है, तो वी कैन डिसाइड टू लाइफ फ्रॉम दिस चार्ट ऑल्सो। सो एस्पीड में ये एक चीज़ है कि एक्सेल रिपोर्ट विद इन ए क्लिक हमें मिल जाएगा। ठीक है, जो यही चीज़, ओके, ये जो हमने मिलिंग देखा, आई होप कि सबको सॉफ्टवेयर कैसे वर्क करता है, ओके, वो पता चल गया होगा। हम एक पार्ट देखते हैं टर्निंग के लिए। तो अभी मैं दिखाऊंगा आपको, तो प्रोसीजर ऑलमोस्ट 90% प्रोसीजर विल रिमेन सेम। ओके, यहाँ से मुझे पहले तो मशीन सेटअप जैसे हमने उसमें किया था वैसे ही टर्निंग है, तो कौन सा टर्निंग के मशीन पे ऊपर। ओके, ये जो मैंने पार्ट है वो 2D ड्राइंग है। ओके, हम 3D भी ले सकते हैं। ओके, टर्निंग में जनरली 2 एक्सिस टर्निंग में ऑटोकेड 2D में बनाया हुआ डायरेक्टली पार्ट हम ओपन कर सकते हैं। तो ये ऑटोकेड 2D में बनाया हुआ था, उसको मैंने पार्ट को ओपन किया हुआ है ऑलरेडी। ओके, अभी मुझे मशीन सेटअप करना है। यहाँ से मैंने यहाँ से ओपन करके, जैसे कि 2 एक्सिस टर्निंग है। ओके, यहाँ पे बार डायमीटर है। ओके, टोटल बार लेंथ है, वो कैसे पता चलेगा। जैसे कि ये पार्ट है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे शो करेगा कि टोटल जो डायमीटर है पार्ट का, जो हमें हमारा टारगेट है उसका डायमीटर 120, यानी हमारा जो ये येलो कलर जो दिख रहा है वो है हमारा स्टॉप। तो एटलीस्ट 120 से बड़ा चाहिए हमें स्टॉप, रोड डायमीटर चाहिए। यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, यानी ये जो हमारा X00 हमारा ओरिजिन है, वहाँ से ये पार्ट है उसका कितना है, तो 140 है। यानी जो पार्ट है उसकी लेंथ है 140 एंड डायमीटर इज 120। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग, ओके, और यहाँ पे जो ग्रीन कलर का दिख रहा है वो चक है। ओके, ये रोड को यहाँ से अभी पकड़ा हुआ है, तो वो सब हमें डिटेल यहाँ पे चेंज करना है। तो पहले मैं मशीन सेटअप यहाँ पे मशीन को अपलोड किया। बार डायमीटर मैंने 140 कर दिया। ओके, टोटल बार लेंथ है 141 कर रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे 1 का, जैसे कि एक्स है तो एक्स में 1 जितना मटेरियल हम एक्स्ट्रा रख रहे हैं जेड डायरेक्शन में। ओके, मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे क्या किया कि 1 एक्स्ट्रा रखा है, और और टोटल पार्ट लेंथ इज 140। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको जो 1 है वहाँ पे मटेरियल रिमूव करके दिखाऊंगा। ओके, तो जैसे कि मैंने वहाँ पे चेन बना देते थे वैसे ही यहाँ पे चेन बनाना है। तो मैंने एक यहाँ पे फेसिंग, मुझे टूल को यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक लाना है, फेसिंग करना है। तो यहाँ पे चेन आ गया, चेन को सिलेक्ट करो। यहाँ पे जैसे हम मिलिंग में जा रहे थे वैसे यहाँ पे टर्निंग में जाना है। ओके, प्रोसीजर विल रिमेन सेम। रफिंग में करना है, रफिंग में जाएंगे तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस हैं। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे ऑपरेशंस का नाम दे देता हूँ मैं, फेसिंग। ओके, यहाँ पे टूल है हमारे पास, टूल है वो डायरेक्ट बना के भी रख सकते हैं। ओके, एज पर आवर रिक्वायरमेंट। ओके, और डायरेक्टली हम यहाँ से ओपन भी कर सकते हैं। ओके, टाइम के हिसाब से मैंने यहाँ पे टूल्स है वो बना के रखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे है हम लोग करेंगे फेसिंग। फेसिंग में जो टूल का ओरिएंटेशन है आप यहाँ पे शो कर सकते हैं, जैसे कि जो भी टूल सिलेक्ट करूंगा तो उसका ओरिएंटेशन आएगा टूल पे। तो फेसिंग के लिए ऐसा रहेगा टूल। ओके, यहाँ पे जो भी डेटा है स्टैंडर्ड वो देना है। स्ट्रेटेजी में जाके 3 ऑप्शन है,
टर्निंग में ये तीन चीज ऑलवेज आएगी यहाँ पे इन कटिंग स्ट्रेटेजी। टाइप ऑफ वर्क, कि भाई हमें आईडी में वर्क करना है, ओडी में वर्क करना है या फेसिंग में वर्क करना है। तो अभी हमें करना है फेसिंग में, ठीक है। यहाँ पे एंट्री और एग्जिट, टर्निंग में दो चीज ध्यान में रखनी है, टाइप ऑफ वर्क और एंट्री एग्जिट। फॉर एन एग्जाम्पल, ये हमारा पार्ट है, यहाँ पे जहाँ पे मेरा कर्सर है वहाँ पे टूल है, ओके। मशीन में है ये जेड है, एक्स, जो एक्स है वो जेड है मशीन के लिए, और वर्टिकल है वो है एक्स है। तो हमें वो देखना है कि हमारा टूल है इधर, ओके, उसको यहाँ पे लाना है, ये जो पॉइंट है फेसिंग के लिए वहाँ पे लाना है। तो कैसे, इधर से डायरेक्ट लाना है, पहले जेड में लाके एक्स में लाना है, या एक्स में लाके जेड में लाना है, तो यहाँ पे हम डिसाइड कर सकते हैं। चलो मैंने एक्स दिन जेड रखा है, यहाँ पे क्लिक किया, ओके। एग्जिट मोड, यानी यहाँ से कट होके फेसिंग होगा, उसको एग्जिट कैसे करेगा, तो डायरेक्ट जेड ओनली भी कर सकते हैं हम इधर, जेड ओनली, और यहाँ से मैंने ओके किया, ठीक है। ओके किया मैंने, तो आप देख सकते हो इधर फेसिंग हो गया, जो 1 mm जितना मटेरियल मैंने एक्स्ट्रा रखा था, ओके। मैं रन एक साथ करता हूँ, ओके। सेकंड ऑपरेशन के लिए वापस, जैसे कि मैंने ये चेन सिलेक्ट किया, ओके, यहाँ पे करना है ऑटो चेन, तो चेन क्रिएट हो गई। अभी हम देख सकते हैं एरो है, तो एरो इधर से है, तो हमें मशीनिंग करना है, ओके, ऑलवेज, ओके, राइट टू लेफ्ट में जाना है हमें। तो चेन को सिलेक्ट करके हमें डायरेक्शन चेंज करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है रिवर्स, ओके। चेन को सिलेक्ट किया, मशीनिंग में जाके रफिंग करना है, तो सेम यहाँ पे क्या आएगा, ओडी आएगा, ओके। ओडी में वर्क करना है, जनरल में जाके हम लिख देंगे यहाँ पे ओडी रफिंग, ओके। ओडी रफिंग करना है, सिलेक्ट टूल, ओडी कंटूर रफिंग टूल सिलेक्ट करूंगा मैं, उसका ओरिएंटेशन फेसिंग में जैसे रखा था वैसे ही आएगा, 3V ओरिएंटेशन। स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेटेजी में जाके हमें देना है एंट्री एंड एग्जिट मोड। जैसे कि यहाँ से ये इतना मटेरियल हमें रिमूव करना है, तो टूल को पहले इधर लाना है, तो हम एक्स देन जेड करके यहाँ पे लेके आते हैं, और यहाँ पे ख़त्म होने के बाद डायरेक्टली ऊपर की ओर निकालना है, तो वो है एक्स है, तो यहाँ से हम कर सकते हैं एक्स ओनली, टूल को निकाला बाहर, ओके। और यहाँ पे रफिंग में बहुत सारे ऑप्शन है, हम स्टॉक में टाइप में रखेंगे, ऑटोमेशन रखेंगे, ओके। यहाँ पे बहुत सारा स्ट्रेटेजी है, जैसे कि पैरेलल टू द एक्सिस है, ओके। और यहाँ पे डेप्थ ऑफ कट है 4 mm है, ओके। चलो मैंने 2 mm किया, ओके, एंड मैं ओके करके देखते हैं पहले, देखो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ओके। तो अभी ये जो है ये क्या हो गया, पासिस है, ओके। मैंने जो डेप्थ ऑफ कट है 2 mm रखा है, ओके। और यहाँ पे जो है ये वो है एंड एक्सटेंशन बोलते हैं हम उसको, जैसे कि अभी हम इसके अंदर देखेंगे, तो डेप्थ ऑफ कट है 2 mm, उसको मैं इंक्रीज करके पासिस मुझे कम करना है, तो 4 mm कर रहा हूँ, ओके। और मैं ओके किया, तो आप देख सकते हो कि पासिस यहाँ पे कम हो गया, 4 mm का डेप्थ ऑफ कट हो गया। वैसे यहाँ पे एंड एक्सटेंशन है, ओके। तो एंड एक्सटेंशन यहाँ पे दिया हुआ है 1 mm है, जैसे कि मैंने 5 mm कर दिया, तो यहाँ पे एंड एक्सटेंशन है वो 5 mm हो जाएगा, ठीक है। तो मॉडिफिकेशन ऐसे कर सकते हैं हम, 1 mm रखता हूँ मैं, ओके। तो ये दो ऑपरेशन हो गया, दोनों को हम लोग रन करके देखते हैं, ओके। इसमें भी मशीन है पूरा, मशीन को आप लाइव देख सकते हो, ओके। अभी मुझे मशीन को ऑफ करना है, तो मशीन को ऑफ कर सकते हैं इधर से हम। यहाँ पे ये जो क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, ओके, जैसे कि कभी हम आईडी में कट करेंगे, तो यहाँ पे हम सिमुलेशन में इजीली देख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे सब, इसको मैं रन करता हूँ, देखो पहले फेसिंग हो गया हमारा, ओके। अभी ये हो रहा है हमारा रफिंग, ओके। फेसिंग एंड रफिंग ऑपरेशन हमारा हो गया, ओके। और जैसे कि मैंने बताया कि अभी यहाँ पे क्रॉस सेक्शन है, तो हमें इसे देखना है, तो हम देख सकते हैं अलग अलग क्रॉस सेक्शन व्यू में, ओके। तो दूसरा, ये दो ऑपरेशन हो गया। वैसे ही यहाँ पे दो है, उसको हम बोलेंगे ग्रूव है, ओके।
तो ग्रू के लिए हमें सिंपल पहले चेन बनानी है। ओके, और यहाँ से करना है ऑटो चेन। ओके, अभी यहाँ से एरो ऐसे है। ओके, इसमें भी चेन बना देते हैं हम लोग एक साथ। और यहाँ पे मैं करता हूँ ऑटो चेन। अभी डायरेक्शन इधर है, हमें रखना है राइट टू लेफ्ट, सिलेक्ट एंड रिवर्स चेन। ओके, अभी ये दोनों ऑपरेशंस को अलग अलग करना है तो अलग अलग भी पॉसिबल है, और एक साथ में करना है तो हम एक साथ में कर सकते हैं। एक साथ में करने में हमें सिर्फ एंट्री और एग्जिट में ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ग्रूविंग ग्रूविंग करके ऑप्शन है, ऑपरेशन है ग्रूविंग। तो यहाँ पे हमें काम करना है ओडी में, नाम देना है जैसे कि ओडी ग्रू, नाम दे दिया ऑपरेशंस नेम। यहाँ से हमें सिलेक्ट करना है ओडी ग्रू। ओके, तो टूल का ओरिएंटेशन ऐसा रहेगा। ओके, देन ओडी हो गया। एंट्री एग्जिट देखना है कि एंट्री मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, एग्जिट इधर कर रहा हूँ। ठीक है, और रफिंग में जाके यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस के कि ग्रू टाइप है, उसमें पासिस हमें कैसा चाहिए। तो हमें मल्टीपल प्लंज चाहिए कि सिंगल प्लंज चाहिए, जिगजैग चाहिए। ओके, वैसे तो अभी मल्टीपल प्लंज रखते हैं हम। ओके किया तो यहाँ पे देखो शो करेगा। ओके, अभी इसको कुछ गलती है कहीं पे टूल, तो उसको हम सिमुलेशन करके देख सकते हैं। देखो, ठीक है, ये हमारा ग्रूविंग हो गया। ओके, सेम चीज़ है हमारे यहाँ पे फेस ग्रू हो रहा है। देखो, आगे की साइड हम 2D देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे एक ग्रू है। ओके, यहाँ पे तो उसको सिलेक्ट करेंगे, सिंपल है, एंड क्रिएट चेन। ओके, तो यहाँ पे चेन जो बनी है 5 नंबर की, उसको सिलेक्ट करके मैं वापस करूँगा ग्रूविंग। उसमें सिंपल एक चीज़ है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ फेस ग्रू। यहाँ से फेस ग्रू टूल सिलेक्ट किया, इसका ओरिएंटेशन ऐसा रहेगा 3V में। ओके, स्पीड डेप्थ ऑफ स्पीड फीड दे दो यहाँ पे सिलेक्ट करना रहेगा वापस फेसिंग। फेसिंग में हमें वर्क करना है, एंट्री एग्जिट देखना है। ओके, एंट्री में यहाँ तक क्लिक कर रहा हूँ, और एग्जिट में मैं डायरेक्टली जेड डायरेक्शन में निकालना है टूल, तो यहाँ से जेड ओनली कर दूंगा, और कहाँ तक इधर निकालना है। ओके, ठीक है, ये हो गया, और ओके किया मैंने। ओके, तभी हम इसको भी सिमुलेशन करेंगे। ओके, उससे पहले ओके यहाँ पे जो इन आईडी में जो वर्क करना है, तो सबसे पहले है हमारे पास एक पॉइंट रखता हूँ, पिटअप करके ड्रिल कर देते हैं हम लोग। पॉइंट सिलेक्ट किया, मशीनिंग में जाके ड्रिलिंग करके ऑप्शन है, उसमें हमें ड्रिल सिलेक्ट करना है। ओके, और यहाँ से ओके सब जो डेटा है टोटल डेप्थ, ओके स्टार्टिंग डेप्थ वो देना है। ओके, अभी दोनों को हम लोग सिमुलेशन करके देखते हैं पूरा। ये ग्रूविंग हुआ था हमारा। ओके, तो सिर्फ फेसिंग में हुआ वर्क, ड्रिलिंग हो गया। ठीक है, अभी हम लोग आईडी में जो रफिंग करना है हमें। ओके, तो इतना चेन सिलेक्ट किया, यहाँ से करेंगे हम ऑटो चेन। ओके, तो यहाँ पे चेन जो बना है 6 नंबर का, उसको सिलेक्ट करके हम करेंगे रफिंग। ओके, उसके अंदर यहाँ पे करेंगे हम आईडी में रफिंग करना है, वही डिफरेंस है, बाकी कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। टूल अकॉर्डिंग हमें सिलेक्ट करना है। ओके, कि टूल आईडी कंटूर रफिंग। ओके, ओरिएंटेशन ऐसा रहेगा 2H। ओके, देन यहाँ पे एंट्री एंड एग्जिट देना है कि एंट्री में यहाँ पे दे रहा हूँ, और मुझे यहाँ तक कटिंग हो गया, उसके बाद थोड़ा नीचे यानी एक्स देन जेड करना है, और मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ बाहर। मैंने ओके किया। ओके, तो यहाँ पे मटेरियल रिमूव हो गया, और यहाँ पे और एक ग्रूव है। ओके, वो ग्रूव भी करके देख लेते हैं हम। सॉफ्टवेयर इज वेरी इजी, बट वी हैव टू क्लियर आवर कॉन्सेप्ट। ओके, हमें बेसिक्स नॉलेज होना ज़रूरी है।
और द मशीन नॉलेज एज वेल एज मैन्युफैक्चरिंग। सिलेक्ट करेंगे हम लोग, यहाँ से वापस ग्रूविंग करेंगे। ओके, तो यहाँ पे करेंगे आईडी। ओके, एंट्री एग्जिट देख लो वापस, एंट्री मैंने यहाँ पे किया। ओके, एग्जिट में भी मैं एक्स देन जेड रखना है। ओके, यहाँ से एक्स देन जेड कर दिया। ओके, रफिंग में जाके मल्टीपल प्लंज रखना है। जनरल में यहाँ पे टूल सिलेक्ट करना है, आईडी ग्रूव, यहाँ पे नाम कर देंगे हम आईडी ग्रूव। ओके, आईडी, ओके डन। ओके, मल्टीपल प्लंज, ओके। ओके, तो यहाँ पे कट हो गया। ओके, पूरा पार्ट हम सिमुलेट करके देखते हैं। ओके, इसको हम टॉप व्यू में से देखते हैं। कैसे टूल एंटर होता है, एग्जिट होता है। ओके, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है फॉर एनी मशीनिंग। कि ये सेकंड हमारा ग्रू हो गया इन ओडी। ओके, ये फेज ग्रू हो गया। यहाँ से मैंने जैसे बताया था वैसे ही चेक कर सकते हो क्रॉस सेक्शन में। ओके, ये हो गया। ओके, ओके, तो ये पूरा पार्ट हो गया। ओके, सो हाउ द सॉफ्टवेयर कैसे वर्क करता है, स्पीड कैम सॉफ्टवेयर, वो चीज़ पता चल गई होगी। तो सो आवर सेशन विल बी एंड विथ वन वीडियो। ओके, जो मैंने बाकी रखा था फॉर वी कैन से द conclude of our manual programmer with कैम प्रोग्रामर। ओके, सो एक वीडियो है वो मैं प्ले करता हूँ। This is Joe. He's a CAM programmer at World Products Incorporated. Joe has a tough job. He's in charge of a critical step in his company's product development process, machining. Or should we say, turning engineers' ever more innovative ideas into products that work in the real world. Welcome to Joe's life. When he receives design models for manufacturing, Joe knows he's got plenty of critical decisions to make. Choosing the appropriate machine tool, picking the most appropriate tools for each machining operation, defining the detailed operations for the whole machining process, browsing through hundreds of pages of industry catalogs in search of tools and holders, creating a CAM program, and finally, setting up the machine tool to produce the part. So many decisions to make. What an exciting job! In reality, all of these decisions leave Joe feeling quite confused and depressed. Joe feels like he's stuck between a rock and a hard place, between the engineer's dreams and the expectations of management and customers. All of them expect a quality product to go onto the market. Engineers want it to be innovative with a cool, modern design. Managers and sales reps want it to be delivered on time and according to quality standards. In the end, customers will want it to work. Joe is under pressure, but that was before. Since he discovered a revolutionary CAM system that gave him super programming powers and made him the hero of his machine shop, depressed Joe is no more. Time for Super Joe. With his new skills and his supercharged CAM software, Joe can program complex machinery better and more easily than ever before. He can import all CAD models natively without the need to convert them. He can address the full spectrum of machining. He can visualize how the machining operations are flowing in a full 3D solid model simulation. He can rely on post processors certified by all major machine tool manufacturers. But that's not all. Joe can now do what he had not even started dreaming about. In a matter of a few clicks, his CAM software connects to the cloud to automatically select the most appropriate tools for the machining operations. Call it knowledge based CAM, instant tool selection, or whatever. This is automatic tool selection, and it works. It has already started changing the game of process planning and programming, while saving Joe's company time and money and making Joe's life much easier. This is the CAM revolution. This is cloud-enabled CAM software. Esprit, the right choice.
Okay, and one more thing, one last slide is okay, so many companies as well as students have some question, okay, which software will be the best. ओके तो एक सिंपल कोई भी सॉफ्टवेयर हो, ओके कैम सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ, तो व्हाट यू नीड टू चेक कैम सिस्टम, कि कैम सिस्टम कौन सा सिलेक्ट करना है, ओके और कैसे करना है, कौन कौन से पॉइंट्स है, तो अकॉर्डिंग टू वी प्रिपेयर दिस बेस्ट पॉइंट फॉर यू ऑल गाइस, सपोर्ट फुल स्पेक्ट्रम ऑफ सीएनसी मशीन। ओके यानी आज मिलिंग के लिए हो रहा है, okay, so that is a machine is capability is only for milling or turning, और जैसे कि मैंने आगे एक स्लाइड बताई थी कि एस्प्रिट हैज़ कैपेबिलिटी टू program any type of CNC VMC machines like wire EDM, okay, high speed simultaneous 3, 4, 5 axis tool path, Swiss style machines. Okay, SPID can support in turning up to 22 axis we can support. Okay, and then his post processor must be accurate, then realistic machine simulation, what you see is what you get. Okay, जो सॉफ्टवेयर में हम देखेंगे वो मशीन पे होना चाहिए. Okay, then for the industry the technical support system must be good. Okay, this slide is our some of customer, they are using Esprit Cam software in India. Okay, and some of our global customer, this, okay, these all our global customer, and they are using Aspid Cam software since a long time. Yeah, thank you. Thank you. Sir, perlu dari ya. Narasi. Thank you, sir. Yeah, thank you. Sir, there are a few queries regarding this session. Yes, sir. First one is from Dr. Sakil Bagzi. Okay. Tool path programming of complex geometry such as inverted profile or a roof of car is possible in this software? Yes, yes, 100% possible in this software. Okay, because अभी जो मैंने बताया वो बेसिक सॉफ्टवेयर कैसे वर्क करता है. Okay, but we have so many customers in aerospace as well as automobile industry. Okay, they are using Speed Cam software. Okay, Speed में सभी कुछ possible है, और also he can contact, or he can also one CAD model, and also I can make one video and send to him also. So anybody, anyone have any major, okay, any challenges for the CAM programming, then he can directly also contact Sopan Infotech. Okay, But sir. my answer is his question answer is yes, definitely we can. Aspid can. Okay, sir. Sir, another query is from Vatsal Maisuria. Sir, Okay. as you talk about tool wear, is this possible to show tool wear with its Yes. geometry? Tool wear. Okay. Yes. 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 Definitely. Yeah. Sure. I can, but it will take more time. Okay. So tool wear, it will show the software. Okay. और बेसिक कहाँ पे हो रहा है वो डिटेक्ट भी करेगा. ओके, कोलेजन भी होगा. ओके, तो हमें सॉफ्टवेयर शो करेगा. Okay, sir. There are only two queries. So that is the end of question answer session. Thank you Okay. so much, sir, for conducting such an informative session. Now, I would like to thank Vidyabhati Trust, our principal, Dr. P.S. Jain, sir, our head of department, Dr. Professor Vishal Z. Jimmer, sir, for allowing us to conduct this webinar. So, before ending this webinar, sir, do you want to add concluding remarks?
Then, yeah, if any have any query, okay, they can directly contact to the college, and college also we are in touch with the SNPIT team. So anybody have any software doubts, okay, we will solve 100%. And we can say the Asprit is a futuristic CAM software, and it is older software, but in India since last 10 or 11 year. So सभी को नया लग रहा होगा सॉफ्टवेयर. Okay, I am working with Asprit since last 5 year. Okay, and so I know the capability of the this software. It is a future cam software. Okay, yeah, thank you. Okay, sir. Thank you. Yeah, thank you, sir.